Hi guys, good morning. Today is 26th of May 2017 and what a run yesterday Nifty gave. What a run Nifty gave yesterday. A bit of inkling though I had. I made a video in the morning and then when this candle took a support at 50 moving average, can you see? This is where I had a good, kind of indication or intuition that the Nifty is planning to go down. The moment it crossed this 50 200 moving average, that was almost a sure shot confirmation sign that the Nifty is planning to definitely go up. And from here also 9460 से ये निफ्टी गई थी another another 40-45 points इसके भी ऊपर चली गई थी, right? So Nifty has made a good base for the last 2-3 days, and then it started going up and showed a very beautiful upward run up. अभी भी ये ऊपर ही जाने के मूड में दिखाई दे रही है. Like I think there is a bit of profit booking may come after say 2-2:30, but as of now there is only positive sentiments in the market. I was looking at various stocks. Yesterday I said Jufic Bio. So even that has done too well today. Like हमने जब इसकी बात की थी ये 65 पे था और आज ये है 67.25 पे. इसने भी आपको 3% का मूवमेंट 3-4% का मूवमेंट आपको दे चुका है कल से, राइट? एंड देन बहुत लोग परेशान थे कि फ्लिप कार्बन में कई सारी मेरे को ईमेल्स आई थी. इवन आई वाज फीलिंग वेरी स्ट्रेस्ड अबाउट इट कि इतने सारे मेंबर्स जो कि मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनका इतना लॉस हो रहा है. फ्लिप कार्बन वाज डाउन, GNFC वाज डाउन, एंड GNFC में भी बहुत अच्छा सा मूवमेंट आया है. वरुण बेवरेजेस वाज डाउन, सारे और ऑल कार्गो वाज डाउन. बट ऑल कार्गो इज़ वन स्टॉक आई एम टेलिंग यू रिपीटेडली. आज जो भी जहाँ भी है ये आपको आने वाले समय में इन अ मंथ्स एंड अ हाफ टाइम विल गिव यू गुड 25% रिटर्न. सो अगर ये आपके पास पोजीशन में है आपको कोई परेशानी या चिंता की बात नहीं है, ठीक है? और जहाँ तक रही बात बाकी आई एम श्योर काफ़ी कुछ कवर अप हो गया होगा. एंड मंडे को जो मैंने वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए इसीलिए बनाया था कि अगर आपके पास कोई फ्यूचर्स की पोजीशंस ओपन हैं तो आप थोड़ा सा उसको लाइटर कर दीजिए, सो दैट यू डोंट फील पिंच अबाउट इट. आपकी सारी पोजीशन सडनली आपको बहुत ज़्यादा लाल निशान में दिखने लगेंगे और वो कॉज ऑफ कंसर्न हो जाएगा आपके लिए. तो टू अवॉइड दैट ओनली आई मेड अ वीडियो कि आप थोड़ा सा अपने आप को लाइट कर लीजिए अगर आपने बहुत हैवी पोजीशंस क्रिएट कर रखी हैं तो. सो एनीवे अब तो मार्केट वापस रिटर्न मोड में आ गया है एंड इट इज़ गिविंग गुड. Again, I think I'm sure all the losses in the position trades must have been covered. ठीक है? So देखते हैं. बट कल का जो मूवमेंट था it was such an unexpected movement and such a drastic movement, and many people have earned a lot of money. Those who had intuition and those who could figure out technically or with looking at the candles, they have bought calls at this point, and it just took them to another, like the calls became 100 times or 200 times higher, and they minted money like anything. And many people have lost money also because they were heavily on the sell side, and when they were heavily on the sell side they definitely have lost quite a lot of money because it's a zero sum game. Somebody has lost and somebody has gained. Government is not going to give from their pocket money to anybody. ठीक है? तो किसी ने लूज़ किया है, किसी ने गेन किया है, बट जिसने गेन किया है उसको मार्केट की समझ आ गई कि मार्केट में क्या चाल आने वाली है, और जिसको चाल मार्केट की नहीं समझ में आती है वो ट्रैप हो जाता है. ये नियम है इसका, मार्केट का नियम यही है. इसीलिए मैं for 5 or 6 years I have just studied Nifty. I have done no trading. I have not done any kind of निफ्टी में भी ट्रेड नहीं किया है. केवल बैठ के माई मेंटर वुड ओनली आस्क मी टू जस्ट वॉच निफ्टी एंड टेल end of the day tell me the direction or what will be the direction tomorrow. That is what I have done 5-6 years. Once I have got a good about 5-6% or 10% correct predictions, then only he allowed me to do a bit of trading. So that is all. Some people were asking me कि आप कैसे, like why your prediction is better, because I have done year after year I have done no trading and I've just watched Nifty, and I was young at that time, so I didn't really care about it. I took it as a part of learning. Now somebody's asked me about RSI की overbought और oversold क्या है. तो आपने देखा होगा जब मैंने पैरामीटर्स आप लोगों को बताए थे RSI के,
तो हमने उसको थोड़ा मॉडिफाई किया था। ओवरबॉट मीन्स वो पोजीशन जहाँ पे कि ऐसा लगता है कि बहुत खरीदारी हो चुकी है और वहाँ से टर्निंग की अपेक्षा की जा सकती है, मतलब द स्टॉक में टर्न इट फ्रॉम दिस साइड, दिस पॉइंट। तो हमने उसको 60 बोला था कि अबव 60 अगर कोई भी वैल्यू होगी, जैसे ये देखिए 60 76 पे है, इस समय निफ्टी ओवरबॉट है, और बिलो 40 है, तो ये हम इसको ये मानेंगे कि ये ओवरसोल्ड है, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी टू वो अपवर्ड डायरेक्शन 20-30 तो बहुत ही लो वैल्यू है, हेविली ओवर सोल्ड हो जाता है उसमें। जैसे 20 और कभी आपको कोई स्टॉक या कोई 12-13 पे मिलता है, तो वो तो बहुत ही एक्सेलेंट बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। सम पीपल वर्क ऑन जस्ट दैट ओनली, कि वो ये अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं कि कब स्टॉक जो है 10, 11, 12, 20 पे भी मिलता है तो वो लोग ले लेते हैं। अच्छा, नाउ हमारा जो मेरा सेटअप है, इन विच आई से कि बाइंग अपॉर्चुनिटी कम्स व्हेन RSI गोज फ्रॉम 40 और सडनली अगर वो जर्क के साथ 40 और 60 दोनों को एक साथ क्रॉस कर लेती है, तो वेरी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होता है। इसी तरह अगर नीचे आने लगती है, मतलब अगर सेलिंग जोन होता है, तो सडनली अगर निफ्टी 60 पहले क्रॉस करे और फिर 40 क्रॉस करे सडनली वन आफ्टर द अदर, दैट्स अ हैवी सेल जोन फॉर अस, राइट। वी सेल एट दैट पॉइंट, और हम इसमें क्या कंबाइन कर देते हैं, RSI को MACD के साथ कंबाइन कर देते हैं, राइट। RSI और MACD को कंबाइन कर देते हैं, दैट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू सेल। तो जैसे मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था ना, मैंने आप लोगों को जिस दिन वार्न किया था, मैंने उस दिन कई सारे ट्रेड्स किए थे। आई डिड मेनी ट्रेड्स, लाइक जब यहाँ से ये MACD और RSI क्रॉस हुआ था, मैंने पुट लिए थे। फिर मैंने देखा था यहाँ MACD और RSI क्रॉस हुआ, मैंने कॉल लिया था। एक दो दिन में मैंने बहुत सारे ट्रेड किए थे। यूजुअली आई डोंट डू सो मेनी ट्रेड्स, बट जब ये इतना वॉलेटिलिटी मार्केट में थी, मैंने काफ़ी सारे ट्रेड्स किए थे। सो अगर अगर मैं कॉल एंड पुट तभी सजेस्ट करती हूँ जब मुझे लगता है कि मार्केट में विद इन अ डे देयर विल बी अ लॉट ऑफ मूवमेंट। तो अब मुझे लगता है कि जैसे सपोज थोड़ा अभी तो निफ्टी के नीचे आने की मतलब आशंका कम है। जैसे अगर सपोज एक कप शेप बन जाती है और ये MACD क्रॉस हो रहा है, RSI भी क्रॉस हो जाता है, कैंडल्स इस 10 मूविंग एवरेज को छोड़ देती हैं, देन वी विल हैव अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। नाउ व्हाट आई वांट टू ऑल्सो टेल यू कि किसी ने मुझसे पूछा कि 10 मूविंग एवरेज का क्या काम होता है। 10 मूविंग एवरेज का काम होता है कि कैंडल्स उसके साथ साथ चलती हैं, तो ये आपकी जो विजिबिलिटी है उसको थोड़ा सा स्मूदन कर देता है। मतलब कैन यू सी दिस लाइन, ये कैंडल ऊपर नीचे हो रही है, बट ये लाइन आपको एक स्मूथ सा फील दे देगा। जो 50 मूविंग एवरेज है उसका काम होता है इस 10 मूविंग एवरेज को सपोर्ट देना, कैंडल्स को सपोर्ट देना या रेजिस्टेंस देना, राइट। सो और सेम stronger resistance or stronger support will be from 200 moving average, and that is why जिस दिन मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था और मैंने आप लोगों को वार्न किया था, दैट वाज अ मंडे विच वाज 22, ये मैंने जगह देखी थी और वो मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ कि ये 200 मूविंग एवरेज है, ये 200 मूविंग एवरेज है, ये 50 मूविंग एवरेज है, ये 10 मूविंग एवरेज है। कैन यू सी 1 ये ग्रीन वाली कैंडल, 2 3 4 5 6 7, ये 7 कैंडल्स मुझे जो है इन्होंने जब ये क्रॉस नहीं किया निफ्टी को, आई वाज डेड श्योर दैट द निफ्टी इज प्लानिंग टू गो डाउन, राइट। दैट इज व्हाट माय इंडिकेशन, क्योंकि ये 200 मूविंग एवरेज से बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है। एंड द डे इट ओपन विद दिस बिग कैंडल, it was a sure short sign that the Nifty is planning to go up. उसके बाद ये Monday, Tuesday, Wednesday it went down. Yesterday I said I feel now Nifty is consolidating and then it's fine today. Now see here, जब ये सारी मूविंग मैंने आपको बताया था कि तीनों मूविंग एवरेजेस इतनी पास है, मतलब there is about to be a big movement in either of the direction. And we could see that that direction was in the downward direction, क्योंकि ऊपर तो बहुत चल चुकी थी और फिर 3 दिन प्रॉफिट बुकिंग के बाद आज फिर ये लास्ट कल और आज में ये ऊपर की तरफ चल रही है, राइट। सो दैट इज हाउ you can identify and see what's happening. So I told you कि what is the purpose of 10 moving average, 50 moving average and 200 moving average, and what is RSI का purpose क्या होता है, just to give us again an indication, it's an oscillator. ये बताता है कि अब जो वैल्यू है 40 से ऊपर चली गई और 60 के ऊपर है, मीन्स स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। देखो आप ये जगह देखो, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड मीन्स एकदम से सडनली RSI 60 को क्रॉस करके ऊपर चली गई, एंड दिस इज हाउ द बिग कैंडल वाज मेड, राइट। सिमिलरली हियर जब ये क्रॉस किया तो यहाँ पे आपको दिखेगा
जैसे ही RSI ने 40 क्रॉस किया, ये बिग ग्रीन कैंडल्स हैव कम अप अगेन, जहाँ पे भी आप देख सकते हो ये 40 को क्रॉस किया, बिग ग्रीन कैंडल्स हैव कम अप, राइट। जब यहाँ पे RSI ने 60 मूविंग एवरेज से रेजिस्टेंस दिया है, निफ्टी केम डाउन, राइट। अगेन फिर 60 से रेजिस्टेंस लेके निफ्टी नीचे आ गई। यहाँ जैसे RSI ने 60 से रेजिस्टेंस लिया है, निफ्टी फिर नीचे आ गई। This is how you have to identify and take your trade based on RSI, MACD and moving averages. ठीक है guys, so this is how Jufic Bio is also doing, and it's doing pretty well, not bad, 3 to 4% return in 2 days. It sounds good. And then all other stocks are pretty fine, so don't need to worry. अब हम मंडे को करेंगे जो भी कुछ फ्रेश करेंगे. My suggestion to you, until you are sure about the trade, just अब मुझे लगता है बाइक में ना फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आ रही है. अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट मंडे को आपको लगता है कि ये रेजिस्टेंस क्रॉस ओवर हो जाता है, आप बाइक में एक अपनी फिर से पोजीशन बना सकते हैं. लेट्स से 15 मिनट में, वन डे में क्या हो रहा है इसमें. सो वन डे में भी ये सपोर्ट ले रहा है, ठीक है. अगर क्लोजिंग बेसिस पे ये 197 या 200 पे बंद होता है और इस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर बंद होता है, देन यू हैव अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी. आई एम नॉट डूइंग इट्स फंडामेंटल एनालिसिस, मैंने पहले किया था जब इसको हमने पहले लिया था, एंड आई थिंक अगेन इट्स स्टैंडिंग ऑन द सेम good support zone, so we will have another buying opportunity coming up. ठीक है. So good day guys, enjoy your trading, enjoy your market, read it. मतलब हर रोज आप लोग 1-1.5 घंटा बैठ के ये समझो कि जो मूवमेंट आ रहा है उसका इफेक्ट क्या होने वाला है, किस स्टॉक पे क्या इफेक्ट होने वाला है, राइट. सो ऑल द बेस्ट, and I really enjoy being with you people. I really enjoy listening to all you. It doesn't matter कोई अच्छे कमेंट, कोई बुरे, कोई चलता रहता है, बट मुझे केवल एक ही इशू है कि आप लोगों का पैसा लॉस नहीं होना चाहिए. यू ऑल हैव टू अर्न मनी बिकॉज आई थिंक यू ऑल आर पुटिंग गुड एफर्ट्स, एंड कितने सारे कमेंट्स आते हैं कि दे हैव स्टार्टेड मेकिंग कंसिस्टेंट इनकम बाय वाचिंग माय वीडियोस, एंड आई फील वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू. ऑल द बेस्ट, गुड डे. अच्छे से ट्रेड करना, और रिपोर्ट मी इफ़ यू अर्न मनी, रिपोर्ट मी इफ़ यू रियली अर्न गुड मनी. और इवन थोड़ा पैसा भी कमाते हो बट लॉस में प्लीज मत जाना. इवन लॉस हो तब भी रिपोर्ट करो आप. विल सी हाउ वी कैन रेक्टिफाई एंड मॉडिफाई एंड वी गो अप, राइट. सो ऑल द बेस्ट गाइज. सी यू ऑन फ्राइडे, और नो, सी यू ऑन मंडे, बिकॉज टुडे इज फ्राइडे. मंडे मिलते हैं फिर से. बाय बाय.